नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा और लोकसभा, जहां दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है और दोनों ही तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा, दोनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है और दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लोकसभा की हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र यादव लोकसभा में कह रहे हैं कुछ और दूसरी तरफ वेंकैया नायडू राज्यसभा में कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वेंकैया नायडू, आपको सुनाते हैं। And its people. I'm not sure if those who are behind the disruptions would benefit from the crippling of Parliament. In the meeting of the leaders chaired by me on 17th of this month, all sections of the House expressed a keen desire to have a productive session and even sought each other's cooperation in this regard. Happy over such noble intentions, I have urged the leaders to walk their talk by enabling smooth functioning of the House. But the course of events in the last few days brought out the gap between the noble intention and the real actions. It is really despairing. The only business that could be transacted so far was 4-hour discussion on COVID-19 issues and the hour-long reply by the concerned minister. Since the discussion could take place, the leaders and members could place on record their views and concerns over the management of the pandemic, besides highlighting the shortcomings and suggesting a way forward. There lies the beauty of having such a discussion. Why not more of them in this House? The people at large also appreciated the discussion in Rajya Sabha as far as the COVID subject is concerned and the manner in which honourable members have spoken, most of them that way. The Minister of Information Technology was scheduled to make a statement on Pegasus spyware issue. I made it clear in the BAC meeting yesterday that thereafter members may seek clarification which would have enabled them to address their concerns in the matter. Even if they are not satisfied on that, there was still scope to discuss, because I have already mentioned it, that leaders and the government, they can sit together if there are further issues and then find a way out and then get back to me. Unfortunately, the proceedings of House hit a new low with the papers being snatched from the minister and torn into pieces and thrown into the air. Such actions are in a clear assault of our parliamentary democracy. They do not cover the world's largest democracy. Please, do not cover the world's largest democracy with glory. Please, should be members of parliament be party to degrading the country's standing in the world stage? It was also agreed at BAC meeting yesterday that this August House will take up a detailed discussion on various aspects, including country's economy, at least for 4 hours. See, I have even suggested to the government, please, don't sit and then make comments. Please, don't test my patience. I am also a human being. I have even suggested. तो लोकसभा में क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा की कार्रवाई यहां पर चल रही है। मैं बताना चाहता हूं कि इस इशू के बारे में मैं 15 मई को ही सरकार को एक पत्र लिखा था कि जो भी ग्लोबल टेंडर निकाले जा रहे पूरे देश में, उस वक्त उस ग्लोबल टेंडर को रिस्पांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि ग्लोबल टेंडर की मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, लेकिन केंद्र सरकार के सपोर्ट के सिवा ग्लोबल टेंडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुआ स्टेट गवर्नमेंट सक्सेस नहीं कर सकते। यूपी गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परमिशंस है, जो ग्लोबल टेंडर्स के जो सप्लायर है, उनके जो इंडियन पार्टनर्स है, उनको जो परमिशन मिलनी चाहिए वो परमिशन न मिलने की वजह से पूरे देश में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर निकाला, वो सब फेल हुए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि पूरे देश में अगर ग्लोबल टेंडर कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या स्टेट गवर्नमेंट को निकालना हो तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म गाइडलाइन होनी चाहिए और यूनिफॉर्म टेंडर ड्राफ्ट होना चाहिए। उस जो भी सप्लाई करेगा उस सप्लाई को आईसीएमआर डीजीसीआई की परमिशन मिलनी चाहिए। वो न होने की वजह से जितने भी ग्लोबल टेंडर है वो फेल हुए। आज पूरे देश के स्टेट हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि 50% गवर्नमेंट सप्लाई करेगी और 50% आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोविड संक्रमण
और वैक्सीन के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है, पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन की भारत की स्थिति क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगा के रखें। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, आप मास्क लगा के रखें। आप खुद अगर संक्रमण फैलाएंगे तो क्या देश में मैसेज जाएगा? और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ को मिलेगा 400 किलोवाट का बिजली घर। 15 अगस्त से राजधानी नहीं गुल होगी बिजली। अब ट्रांसमिशन सिस्टम की दिक्कत खत्म होगी। 465 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। तो जेहटा 400 किलोवाट ट्रांसमिशन बिजली घर 15 अगस्त को होगा शुरू। बिजली घर चालू होने से 45 लाख की आबादी को राहत मिलेगी। 10 सालों तक डिमांड बढ़ने पर भी नहीं आएगी कोई समस्या। राजधानी में 40 साल बाद बना 400 केवी का बिजली घर 300 सालों में तैयार हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माफ कीजिएगा 3 साल में तैयार हुआ है बिजली घर। तो 3 साल में तैयार हुआ है बिजली घर। 15 अगस्त से राजधानी में नहीं गुल होगी बिजली। अब ट्रांसमिशन सिस्टम की दिक्कत खत्म होगी और ये बिजली घर 3 सालों में बनकर तैयार हुआ है। जेटा 400 केवी ट्रांसमिशन बिजली घर 15 अगस्त को शुरू होगा और इसके बाद से ही बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। और खबर है रामपुर से। रामपुर में एसबीआई की मिल्क शाखा से 20 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। ये रकम कैशियर के पास रखी थी जो एटीएम में डालनी थी। इसी बीच चोर ने मात्र 3 मिनट में धनराशि गायब कर दी। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह भी मौके पर पहुंचे और बैंक कर्मियों से घटना के बारे में जानकारी ली। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोर लगभग 11:55 पर कैशियर के पीछे लगे दरवाजे से दाखिल हुए। कैशियर के पीछे रखे संदूक के ऊपर रखी नोटों की गड्डियों को अपने थैले में रखा। इसके बाद कैश लेकर 11:58 पर बैंक से चले गए। इस दौरान किसी ने भी चोर की हरकत पर ध्यान नहीं दिया। तो बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम बदमाशों ने दी है और ऐसे में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। एसबीआई की एक शाखा से 20 लाख रुपए चोरी किए गए हैं। एटीएम में डालने के लिए कैशियर के पास रकम रखी थी। चोर ने मात्र 3 मिनट में धनराशि गायब कर दी और मामला दर्ज कर पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है कि आखिर ये चोर कौन थे, कहां से आए थे और कैसे इन्होंने बड़े ही शातिर अंदाज में 20 लाख रुपए चुरा लिए। एटीएम में डालने के लिए कैशियर के पास ये रकम रखी थी। एटीएम में डालना था 20 लाख रुपए, लेकिन मात्र 3 मिनट में ही चोरों ने ये धनराशि गायब कर दी है और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एसबीआई जैसे बैंक में इस तरीके से अगर चोरी होती है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे, क्या सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर नहीं किया जा रहा था और ऐसे में चोरों ने आखिर ऐसे कैसे आसानी से चोरी कर ली, वो भी 20 लाख रुपए जो बैंक के अंदर रखे थे। आखिर कैसे दाखिल हुए चोर बैंक के अंदर और कैसे उन्होंने चोरी की, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो एटीएम में डालने के लिए कैशियर के पास रकम रखी थी। चोर ने मात्र 3 मिनट में धनराशि को गायब कर दिया। 11:55 पर चोरों ने एंट्री ली दरवाजे से और 11:58 पर चोर बाहर निकल आए कैश लेकर। एसबीआई की मिल्क शाखा से 20 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। तो वही खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जिले के चरथावल थाना क्षेत्र में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में रास्ते को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में कई घंटों तक जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, चरथावल थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है।
सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी मिल रही है? एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़े हैं, पत्थरबाजी इसमें हुई है, आखिर किस बात को लेकर लड़ाई हुई? देखिए, आपको बता दूं, काफी समय से दो जो पक्ष हैं उनमें विवाद चल रहा था एक भूमि को लेकर, और यही विवाद देर रात एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जबरदस्त रूप से पथराव और ईंटबाजी हुई है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर एसएसपी अभिषेक यादव भी पहुंचे, भारी पुलिस बल भी पहुंचा और पुलिस ने लाठियां भी फटकारी है और शांति व्यवस्था बनाने के लिए सब काम किए, बल प्रयोग भी किया है, जिसमें अब पुलिस ने, आपको बता दूं, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर नामजद और सैकड़ों लोगों पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है और कई लोगों को हिरासत में भी लेकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर सत्येंद्र त्यागी समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। नंदग्राम थाने में हुआ है मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। बॉलीवुड फिल्मों के प्रोड्यूसर और फाइनेंसर हैं सत्येंद्र त्यागी। विवादित जमीन पर बन रही दीवार को ध्वस्त करके का आरोप है। महिला और अन्य लोगों से मारपीट और बदसलूकी का भी आरोप लगा है सत्येंद्र त्यागी पर। और बलरामपुर जिले में, जहां पर 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बारिश के कारण नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं राप्ती नदी के सटे तटीय क्षेत्र में बाढ़ से तबाही का मंजर है। ललिया हरिहरगंज मार्ग और लवकहावा के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क से गुजर रहे हैं। थोड़ी सी भी चूक लोगों की जान ले सकती है। तो तटीय क्षेत्र में बाढ़ ने तबाही मचाई। शामली के धबेड़ी गांव में ईद उल अजहा के मौके पर एसडीएम न्यायिक देवेंद्र सिंह गरीबों के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दर्जनों गरीब बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को नए कपड़े वितरित किए। ईद उल अजहा के दिन नए कपड़े पाकर गरीब बच्चे, महिला और बुजुर्ग के चेहरे खिल उठे हैं और वे मन ही मन एसडीएम को दुआएं देते भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि एसडीएम न्यायिक देवेंद्र सिंह अक्सर समाज सेवा और जनहित के कार्यों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस दौरान एसडीएम देवेंद्र सिंह ने कहा है कि गरीबों की मदद करके उनके मन को शांति और खुशी मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, जिसके चलते आज वो जनपद के गांव धबेड़ी पहुंचे। वहीं एसडीएम की सराहनीय पहल से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ईद के मौके पर मेरे द्वारा 40 बच्चे जो कि जिनके पास कपड़े नहीं थे, किसी के पास इनरवियर नहीं था, किसी के पास पहनने के लिए टी शर्ट नहीं थी, तो धबेड़ी गांव में जो ज़रूरतमंद बच्चों को चिन्हित करके उन 40 बच्चों को टी शर्ट और जो है निक्कर बांटे गए। और कुछ बुज़ुर्गों को जो नहायत ज़रूरतमंद थे, जिनके कपड़े फटे हुए थे, पुराने थे, गंदे थे, उन 5 बुज़ुर्गों को कुर्ते पजामे का कपड़ा बांटा गया और 5 विधवा और वृद्ध महिलाओं को साड़ी दी गई और 5 महिलाओं को ही